Forget icy dips, the Arctic turning tropical. Marine heat waves are heating things up by 4 degrees Fahrenheit 6 years straight. Polar bears shiver, ecosystem fry, and global weather goes wonky. And the new study blames greenhouse gases. This is not only the Arctic issue, this is a wake-up call for all of us. Right? So hello everyone, welcome to the Aptitude Academy of Civil Services, a premier organization for preparation of civil services exam. In today's News in Focus video session, we will discuss about the concerns of marine heat waves in Arctic. So can there be heat waves in our ocean? We'll discuss about that too. This is an important topic for various civil services exams along with the UPSC, and the relevance is to prelims and general GS paper 3rd. For instance, it relates to topic conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, and general issue on environment, ecology, biodiversity and the climate change. So let's move to the context. So there is marine heat waves in Arctic oceans. So if you look at the context, so imagine an Arctic ocean, imagine the situation that Arctic ocean feeling like a warm bath instead of a giant ice cube. That's which is happening with marine heat waves. So there are periods of super hot water since 2007. The Arctic has seen 11 of such kind of heat waves with temperature range soaring up to the 2.2 degrees Celsius above normal, and that's almost 4 degrees Fahrenheit. So recently a study जिसका टाइटल है आर्कटिक मरीन हीट वेव्स फोर्स्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड ट्रिगर्ड बाय द एब्रप्ट सी आइस मेल्ट, जो ऊपर देखिए आप ये रहा है, और ये पब्लिश हुई है नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में. इट सेज दैट थिंग्स आर गेटिंग सीरियस फ्रॉम 2015 to 2021. These marine heat waves have not stopped. That's 6 years in a row. And this is a bad news for everyone, not just polar bears. So warmer oceans mess with ecosystems, melt more ice and even affect weather pattern around the world. What are the highlights of this study? Right? So let's move about the highlight. So Arctic marine heat waves के characteristics क्या होते हैं? So there have been 11 such marine heat waves in the Arctic from 2007 to 2021 that prolonged high sea surface temperature, जिसको हम अभी SST भी बोलते हैं, prolonged high sea surface temperature. And these events of MHW are coinciding with the decline in the Arctic sea ice. So especially in 2022, especially the Arctic saw very severe and extreme marine heat waves in the Laptev Beaufort seas from spring to autumn, according to the State of the Global Climate 2022 report. Right? And also there is a pronounced long-term warming trends in the Arctic, with SST, that is sea surface temperature, increasing at the rate of 1.2 degrees Celsius per decade. 1996 से 2021 तक हर decade में जो sea surface temperature SST में increase हुआ है वो around 1.2 degrees centigrade per decade. But over the last 2 decades, there has been a more increase in the frequency of extreme SST events, especially in the eastern Arctic marginal seas. Right, so it has warmed by the Arctic overall has warmed by around 4 times faster than the global average since the 1980s. Right, इस पेपर में ये बात की गई है. So the perennial ice cover, आर्कटिक ओशन में जो perennial ice cover मतलब हमेशा जो एक मोटी लेयर रहती है, बर्फ की आइस कवर रहता है जो कि रिफ्लेक्ट करता रहे सोलर रेडिएशन को. वी नो दैट द एल्बिडो हायर होती है एक आइस की, उसमें भी डिक्रीज आया है, नॉट इन जस्ट समर्स बट विंटर्स में, यानी मिड 1990s के बाद ये रिफ्लेक्ट करना, जो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी में भी कमी देखी गई है. एंड दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम ए थिकर एंड डिफॉर्म्ड आइस कवर जो होता था, एंड इट इज शिफ्टेड टू ए थिनर एंड मोर यूनिफॉर्म वन, बहुत थिन होता जा रहा है. एंड दिस थिन आइस इज लेस ड्यूरेबल and it melts quickly and allow incoming solar radiation to warm the water surface. राइट, तो प्रिमरली जैसे हमने बात की थी कि आर्कटिक के जो मार्जिनल सीज हैं विच इंक्लूड्स कारा, लैप्तेप, ईस्ट साइबेरियन, चकची एंड द पार्ट ऑफ बियोफोर्ट सीज, इनको हम मैपिंग में हम देखेंगे. यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. क्यों? क्योंकि दीज मार्जिनल ओशियंस हैव शैलो मिक्स्ड लेयर्स, डेप्थ इनकी शैलो होती है. राइट, तो दे क्रिएट कंडीशन कंड्यूसिव टू द मरीन हीट वेव्स डेवलपमेंट. Right, there could be the dramatic consequences, there could be the dramatic impact of these marine heat waves on food chains, food waves, fish stocks, reduction of overall biodiversity. Ice retreat is another concern, क्योंकि ice retreat होती है, it could trigger the marine heat wave events also.
So let's learn what is marine heat waves. These are nothing but the prolonged periods, बहुत लंबे लंबे periods होते हैं of high sea surface temperature, unusually high sea surface temperature. As अगर थोड़ा सा और factually समझें, that means surface water temperature are higher than 95% of the values from the past 30 years for at least 5+ days, 5 दिन तक या 5 दिन से ज़्यादा अगर सी सरफेस टेम्परेचर 90% ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द पास्ट 30 ईयर से ज़्यादा है तो दैट इज कंसिडर्ड मरीन हीट वेव्स. इन जनरल 3 to 4 डिग्री सेल्सियस अबव द एवरेज सी टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 5 days इज कंसिडर्ड द मरीन हीट वेव. तो यस, ओशंस में मरीन हीट वेव होती हैं. So it can last weeks, it can last months or even years according to the National Oceanic Atmospheric Administration. तो इसके ड्राइवर्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको ड्राइव करते हैं. वन मोस्ट कॉमन ड्राइवर इज ओशन करंट विच कैन बिल्ड अप द एरियाज ऑफ वार्म वाटर एंड एयर. ठीक है, सो द वार्मिंग ऑफ द ओशन सर्विस हैपन्स थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड एनी चेंज कैन इम्पैक्ट द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विद ग्रीन हाउस गैसेज. So without the involvement of such gases, marine heat waves with intensity greater than 1.5 degree Celsius would not be possible. यानी कि जो मरीन हीट वेव्स की इंटेंसिटी है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं हो सकती थी अगर ग्रीन हाउस गैस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो. बट वी हैव ऑब्जर्व दैट इन 2007, 12, 20 में रेस्पेक्टिवली 3.5 डिग्री, 2.1 डिग्री और 4 डिग्री इंक्रीज हुआ है इंटेंसिटी में. दैट मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट. इम्पैक्ट थोड़ी सा ऑब्वियस है. ये इम्पैक्ट ओशन पे क्या होता है, सी टेम्परेचर बढ़ जाता है, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, राइट. तो इसमें क्या है, माइग्रेशन पे भी फर्क पड़ता है. जैसे कि फिश किल, सी ग्रास का डिस्ट्रक्शन है, लॉस ऑफ केल्प फॉरेस्ट है जो कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है. और माइग्रेशन में कैसे अफेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में 2010 और 2011 में इसने फिश किल भी किया था और अनएक्सपेक्टेड डेथ भी हुई थी दूसरी फिशेस की. तो काफ़ी फिश उस एरिया से माइग्रेट भी की थी, राइट. और दूसरी बात जैसे कि इट कैन चेंज द हैबिटेट रेंज ऑफ सर्टेन स्पीसीज. जैसे यहाँ पे माइग्रेशन का दूसरा एग्जांपल है स्पाइनी सी अर्चिन. ठीक है, जो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैज़ बीन एक्सपेंडिंग साउथ वर्ड इनटू तस्मानिया. तो जो पहले साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में थे अब साउथ वर्ड में और तस्मानिया की साइड मूव कर रहे हैं बिकॉज केल्प फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं. जैसे हमने बात की थी, केल्प फॉरेस्ट है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और इनका जो मेन जो फूड है वो केल्प है, केल्प फॉरेस्ट है. Right, so they are migrating. On humans, that is obvious. The livelihood is affecting, which includes fishing, aquaculture, and they are prone to more natural disasters like cyclones. ठीक है, तो tropical cyclones हैं जो hurricanes हैं, they are getting stronger. And along with that, there is a risk of deoxygenation and acidification. So these things occur alongside the other stressors such as ocean acidification, deoxygenation, and overfishing. राइट, ये सब मिलके क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. दे आर डैमेजिंग हैबिटेट्स, दे आर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एसिडिफिकेशन, राइट. सो बिफोर दैट देयर इज वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. सो फॉर ऑल एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और जो इस साल मई में 2024 में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, जो एप्टी प्लस अकेडमी है ऑन Feb 25 को यानी 25th ऑफ दिस मंथ ऑन 11 AM to 1 PM एक फ्री मॉक टेस्ट का कंडक्ट करा रहा है. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज एट ऑल. बस आपको रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ विजिट कीजिए, क्लिक कीजिए, या फिर जो स्कैन यहाँ दिया हुआ है QR कोड इसको स्कैन करना है रजिस्टर करने के लिए. एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल to compare yourself or compete yourself to the thousands of similar candidates who will be appearing this year. And the early analysis for your strong and weak area would help you in your journey towards UPSC. And there is also provision for awards. पहले 1 से 10 रैंकर्स को अवार्ड भी दिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट 3 रैंकर्स हैं उनको जो फ्री सब्सक्रिप्शन है 49 मॉक टेस्ट का उनको दिया जाएगा. जो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मर्स यानी 4th से 10th रैंकर्स हैं, दे वुड बी प्रोवाइडेड free subscription for 10 mock tests, right. So and again you can register by clicking the link of registration given in the description of the video, or you can scan the QR code. There is one more initiative or important information to all those students who will be appearing specially for this prelims 2024. The Nischay test series by
FT Plus is for prelims 2024. This comprehensive test series is designed by experts of their field, and they offer you various benefits like realistic exam simulation, expert videos, those 10 recorded discussion classes, time bound practice, more around 4900 high quality questions to practice, right? So you can register it. This test series, initial test series is shortcut to your prelims confusion. एनरोल करने के लिए आप यू कैन विजिट द FT Plus Academy वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट? सो लेट्स लर्न अबाउट द की फैक्ट्स अबाउट द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सी। द आर्कटिक, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मैप में, इट्स अ पोलर रीजन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। तो नॉर्थ पोल के आसपास जो रीजन है दैट इज आर्कटिक रीजन। इसमें आर्कटिक में क्या क्या आता है? आर्कटिक ओशन ये आपको दिख रहा है, एडजेसेंट जो भी सीज हैं, सीज को हम डिटेल में बात करेंगे। अलास्का का कुछ पार्ट है, यू कैन सी हियर। कनाडा का ये आप देख सकते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, राइट? और बहुत सारे मार्जिनल सीज हैं इसमें, जैसे बेरेंट सी, कारा सी, लेप्टिव सी, राइट? सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक ओशन, पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड द डिफरेंट मार्जिनल सीज। सो लुक एट द इन डिटेल। जैसे हम बात कर रहे थे बेरेंट सीज की, ईस्ट अरेबियन सी देखिए, ब्यूफोर्ट सी है, यहाँ पे लेप्टिव सी, कारा सी, यहाँ पे बैफिन बे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। थोड़े और देखें तो नीचे, अगर थोड़ा सा नीचे आए हम, तो यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है ग्रीनलैंड के बगल में, जो बैफिन बे के नीचे है। उसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो लेब्राडोर सी है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्कटिक, राइट? इधर नॉर्वेनियन सी है, नॉर्वे के जो जस्ट बगल में, उसके थोड़ा सा ऊपर, और कारा सी के नीचे यहाँ देखिए, दिस इज द बेरेंट सी। ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों होती है? हम यूपीएससी का भी प्रीलिम्स क्वेश्चंस देखेंगे। सो दिस इज द लैंड विद इन द आर्कटिक रीजन, जो हाईलाइटेड लैंड है ओशन के अलावा। सीजनल वेरी करती है स्नो और आइस कवर में, कभी स्नो होता है, कभी थिक कवर होता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्कटिक ओशन। लेट्स मूव अबाउट द प्रीलिम्स के, सॉरी, यूपीएससी मेंस 2022 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बोलता है, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। Explain the control measure to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming in the light of the Kyoto Protocol 1997। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? देखो, आपके क्योटो प्रोटोकॉल में रिसेंट कुछ भी हैपनिंग्स हो रही होंगी, वो आप क्विकली मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, 2-3 लाइन्स में, जो भी एक डिसीजन पे पहुंचे हैं या भी हैपनिंग हो रही हैं। या फिर आपको स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैस कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, कुछ लाइन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? कुछ लाइन में बस मेंशन करना है, 2-3 लाइन्स में। बॉडी पार्ट में आपको मेंशन करना है इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, ब्रीफली, ये भी ब्रीफ रहेगा। जो मेन पार्ट रहेगा बॉडी का, वो रहेगा कि कंट्रोल मेजर्स क्या हैं इसको ब्रिंग डाउन करने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है उसको कम करने के लिए कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। बट वही आपको कंट्रोल मेजर्स हाईलाइट करने हैं, सबसे ज़्यादा लिखने हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू हो, क्योटो प्रोटोकॉल में जिन चीज़ों पर बात की गई हो। वंस यू डू दैट, ब्रीफली आप ये भी मान सकते हैं कि इंडिया लेवल पे क्या मेंशन हो रहा है, ठीक है? उसके बाद कंक्लूजन में कुछ ऐसे एग्जांपल्स या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स हों, या कुछ ऐसे मेंशन कर सकते हो जहाँ पे ये कहा गया हो, या आप ये बता सकते हो कि क्या और चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट की जानी चाहिए, या कुछ ऐसे सजेशंस जो लिए जा सकते हैं, या स्टेप्स जो लिए जा सकते हैं। तो इस तरह आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो न्यूज़ में ग्लोबल वार्मिंग से, ग्रीन हाउस गैस से, मैपिंग से, या फिर इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस हों, वो पूछ लिए जाते हैं, right? So that's it for today. Thank you for joining today's News in Focus session of FT Plus Academy, and I hope the discussions we made would be useful or valuable for your upcoming UPSC and state PCS exams. For more video information and such content, stay tuned and keep learning, keep visiting FT Plus Academy's YouTube channel, and thanks for watching.